सरकार का ही गुस्सा था, क्योंकि उससे पहले जो पीसफुल हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उसकी वजह से पीपल वर वेरी एंग्री. The internet has been completely shut down, and many postgraduate students from Ladakh take online classes, so they are unable to study. आपको लगता है इंडिया में डेमोक्रेसी सही में है आज की तारीख में? नो, इट हैज़ मोर बिकम लाइक अ डिक्टेटरशिप, क्योंकि मीडिया को भी ऐसे दबाया जाता है, और जो इलेक्शंस में उन्होंने लाइक मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया वो ही फुलफिल नहीं कर रहे, तो आई थिंक डेमोक्रेसी इज़ नॉट अलाइव इन इंडिया. And we, the youth of Ladakh, believe in him. So these allegations by the government are totally baseless, because he have been protesting peacefully for the last 6 years. And the violence protests broke out because the youth was frustrated. Youth were frustrated because the government haven't provided jobs since 5 years. अवामी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अवामी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लद्दाख तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ. हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट हमारी बात सुनेंगे. हमने पेशेंस रखा था 6 साल 5 साल तक, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ना युवाओं के लिए कुछ किया, युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्रिएट नहीं किया, और लद्दाख को जो सेफ गार्ड थे, हम वहाँ पर रहते, हमने वहाँ पर एनवायरनमेंट को चेंजेस होते हुए देखा है. भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी कहते हैं लद्दाख के कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, और उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने कारगिल में जंग लड़ी, पाकिस्तान की गोलियां जिन्हें मार न सकी, उन्हें अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को गोली मारने का ऑर्डर किसने दिया? क्या इतना भी हक नहीं है इस लोकतंत्र में हम ये पूछें कि इनको दिन दहाड़े गोली क्यों मारी गई? नमस्कार, आदाब. मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप लगातार कवरेज देख रहे हैं. लद्दाख के हालात पर हम बातचीत कर रहे हैं. वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो चिंताएं हैं, वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं. आज जगह जगह देश भर में प्रोटेस्ट्स आयोजित किए गए हैं. लेफ्ट फ्रंट के जो आउटफिट्स हैं, आइसा हैं, तमाम दूसरे आउटफिट्स हैं. सिविल सोसाइटी मार्चेस निकाली जा रही हैं. दिल्ली के जंतर मंतर में भी यहाँ पर एक सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है. एंड विथ मी यहाँ पर कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं जो ले से हैं, लद्दाख से ही जो उनका नाता है. हाय, व्हाट्स योर नेम? Athari. Say, you from Leh itself? Yes, I'm from Leh. What are you doing here in Delhi? I'm studying BA Honours in Political Science from Gargi College in DU. So tell me, first of all, what is the situation back home? Have you been able to talk to your family? Are they safe? Yes, I've been able to talk to my family, but the internet has been completely shut down, and many postgraduate students from Ladakh take online classes, so they are unable to study. So I think the administration should look into this matter. And How many days has it been since the internet has been shut down? I think more than a week, I guess. It's been more than a week since the internet has been shut down, and my sister is also a postgraduate student, and she's also unable to take her online classes and is also unable to submit her IGNOU assignments. So I think the government should think about the students. I think this is an attempt by the government to shut down the voices of the youth and to shut down the truth. They have been manipulating the truth since the violent protests broke out in Ladakh. They have been blaming all the violent protests on Sonam Wangchuk and have also detained him. So I think the government should should look. You think this is absolutely unjust? देखिए, India actually has the notoriety of the maximum shutdowns in the world. कश्मीर हो, मणिपुर हो, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं कोई तनाव हो, पहले ही जो है इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है. और आज इंटरनेट को it's considered a right to life because people's economies, people's education are dependent on it. तो आप सोचिए कि बिना डिजिटल एक्सेस के लोगों को कितनी परेशानी होती होगी. Will you girls also speak to me? What are your thoughts today? Tell me, what's your name? Tenzin. My name is Tenzin. Yeah. Okay, so Tenzin, whatever has happened in Leh over the past few days, I mean, Leh Ladakh is considered such a peaceful place. It's a beautiful place. Did it come as a very rude shock to you? Were you absolutely scared? Yes, it was like very uncertain.
because Ladakh is like so peaceful, like you must be knowing. So yeah, it was very shocking for me. What do you have to say about the arrest of Sonam Wangchuk? Have you ever met him in person? I haven't met him in person, but I think this is very unjust to detain someone without any proof or like without information or anything. You know, you also spoke about Sonam Wangchuk. He has been slapped with a very draconian National Security Act. There are all kinds of allegations against him. People are saying, oh, he went to Pakistan for a conference earlier in the year, so there must be some conspiracy. Is it leading to more anger amongst the people in Ladakh? Yes, I guess it is. And he also met two students from Ladakh earlier this day, and he said that we should follow the peaceful way of Gandhian. We should follow the Gandhian peaceful way. So I don't think he would ever like support violence. So, and we, the youth of Ladakh, believe in him. So these allegations by the government are totally baseless because he have been protesting peacefully for the last 6 years. And the violence protest broke out because the youth was frustrated. Youth were frustrated because the government haven't provided jobs since 5 years. So I guess blaming the violent protest on him is ridiculous. Right. Just 1 second. Let me speak to them. So, you know, your friend here is talking about the job situation. If you could also come in. You are all young students there. Do you think you have a future going back to Leh, being able to find a job there? If the situation remains the same, I think the job opportunities, finding job opportunities would be difficult if the situation remains the same. And detainment of Sonam Wangchuk is totally unjust. It's not like, it's very baseless. Yeah. What do you want to become? You know, what is your ambition at this point in time? I'm so sorry. They will speak now. I just want to. The situation has to become peaceful right now. It's the main. What you say? यही होना चाहिए पहले. Because अब हमारे घर में people are very. क्या नाम है आपका? Stencil. सेंसिंग, आपके घर में इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि ये जो लोग कह रहे हैं जॉब्स की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है लद्दाख के यंग लोगों के लिए? बहुत है क्योंकि बहुत सारे अभी हैं जो उनका पूरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है, वो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं अभी और उनके साथ बहुत गलत हो रहा है अभी क्योंकि गवर्नमेंट इज़ हमारा बेसिक वो राइट ही छीन लिया है, तो अभी एजुकेशन का तो वो सवाल ही नहीं उठता है. जैसे लेह में देखने को मिला हमें जिस दिन वायलेंस हुआ कि उस दिन बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया, आर्सन हुआ, लेह काउंसिल के ऑफिस को आग लगाई गई. ये आपको लग रहा था कि ये यंग पीपल का जेन्युइन गुस्सा है या आपको लगता है कि इसमें कुछ बाहरी एलिमेंट्स थे जिन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया? अंदर का ही गुस्सा था क्योंकि उससे पहले जो पीसफुल हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उसकी वजह से पीपल वर वेरी एंग्री. और ऑल्सो यूथ उनको वो जो अनएम्प्लॉयड बैठे थे वो भी बहुत सालों से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे. तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ है, वो अंदर का ही फ्रस्ट्रेशन था. जी, यहाँ पे आपको याद दिला दें कि आज जैसा अभी ये बता रही थी सोनम वांगचुक जो कि जोधपुर सेंट्रल जेल में लॉज्ड हैं, फाइनली 1 हफ्ते बाद उनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी गई 2 लोगों को, जिसमें एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी भी शामिल हैं. और उसके बाद एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया जिसमें कुछ पॉइंट्स की गई. सोनम वांगचुक ने अपनी तरफ से कहा कि जिन लोगों की जान गई है उनके लिए उन्होंने कंडोलेंसेस दिए, अफसोस जताया और ये भी कहा कि पूरे मामले की जो है फेयरनेस के साथ में जाँच हो. लद्दाख के स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है, 6th शेड्यूल में इंक्लूजन की डिमांड की जा रही है. व्हाई डू यू थिंक स्टेटहुड इज इम्पोर्टेंट फॉर लद्दाख? Because when Ladakh was separated from JNK in 2019, JNK was given the status of UT with a legislature, but Ladakh was established with as a UT without one. So we don't even have the right to choose our own administrator. How can we Ladakhi people trust someone who is chosen by the government with our land and with our sensitive ecology? So we need statehood. Or if you can't give us statehood, then give us 6th schedule that you promised in 2019 elections. Give us 6th schedule that you promised in 2020 Ladakh Hill Development Council elections. Why do you think 6th schedule is important? Do you think the people in Delhi are not understanding how fragile Ladakh is?
I think most of the people don't know, aren't aware much like what's the situation is there. But I think the government should do like what it promised to do. Like in its manifesto, they clearly mentioned that they'll give sixth schedule to us, but now they're denying. So I don't think it's right to do. आपके वहाँ Yeah, and also if we raise our voice, then we are termed as anti-national. So this is not right, I guess. ये जो प्रॉब्लम है ना कि कोई अगर क्रिटिसाइज करे, सवाल करे, आप उनको जवाब देने की जगह, सल्यूशन देने की जगह एंटी नेशनल जो है आप लेबल कर देते हैं। ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फ्री स्पीच पर और लोगों के अधिकारों पर सबसे बड़ा जो है ये अटैक है, जिसको लेकर भी गुस्से में हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बात करने के लिए। Say ना कि India is the biggest democracy, but in this situation, I don't see any democratic element here. Yeah. You don't see a democratic government. No, not at Do you all. think Sonam Wangchuk will be released? Do you have hope? Like I don't know, but all Ladakhis want him to be free, like so that he can raise his voice against all this injustice happening. Are you scared for your friends in Leh? Many people, young people have been detained, arrested, they are being asked questions. Yes, I am very scared for them because they have their whole career ahead them, and I don't know what the government is planning to do with them. So yeah, I hope the government releases all of them and do a justified investigation. Okay. Let's just hope that when the matter comes up in Supreme Court on Monday, there's a habeas corpus that has been filed by Gitanjali Angmo, the wife of Sonam Wangchuk, that there is some resolution inside. Do you want to just give a last thought? आपके जो दोस्त लोग हैं ले में, जिनकी अरेस्ट वगैरह हुई हैं लोगों के, आपको लगता है कि मामला शांत होगा, सोनम वांगचुक रिलीज हो गए, आपको लगता है कि टेंशन और बढ़ेंगे? टेंशन तो अभी भी बहुत है। अभी तो पीसफुल है ही नहीं लद्दाख, क्योंकि उनके इंटरनेट शट डाउन कर दिया है, कर्फ्यू भी लगाया था पहले, अभी एक्सटेंड हुआ है थोड़ा टाइम के लिए। तो लगता है कि कुछ एक्शंस लेने चाहिए, पीसफुल एक्शंस, तो हमारे घर वाले भी अच्छे से रहें और हमसे लाइक बातचीत हो सके। आपको लगता है इंडिया में डेमोक्रेसी सही में है आज की तारीख में? नो, इट हैज़ मोर बिकम लाइक अ डिक्टेटरशिप, क्योंकि मीडिया को भी ऐसे दबाया जाता है और जो इलेक्शंस में उन्होंने लाइक मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया वही फुलफिल नहीं कर रहे, तो आई थिंक डेमोक्रेसी इज़ नॉट अलाइव इन इंडिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ऊपर से मीडिया में वो ताकतें भी हैं जो कह देंगी कि भाई देखो, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट में भी फॉरेन हैंड था, बांग्लादेश में फॉरेन हैंड था, यहाँ पे भी करने की कोशिश की कि जेनजी प्रोटेस्ट है। तमाम जो कंस्पिरेसी थियरीज रह रहकर कही जाती हैं लोगों के खिलाफ में, जो आवाज़ उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, एंटी नेशनल ब्रांड कर दिया जाना, कैसा फील होता है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा जो सही के लिए करता है उनको जब सही नहीं लगता तो ऐसा नाम लगाते हैं कि एंटी नेशनलिस्ट है और ये वो है, वो तो सभी होता है। अभी हमें पता है कि लद्दाख में क्या हो रहा था और क्या हो रहा है, तो इट्स वेरी हर्टफुल नो कॉलिंग अस एंटी नेशनलिस्ट एंड ऑल। लद्दाख में लोग जब जाते हैं टूरिज़्म के लिए बहुत सारी प्यार वाली मेमोरीज़ लेकर आते हैं, और जैसा हम हमेशा कहते हैं लद्दाख के लोगों को एक फर्स्ट फ्रंटियर के तौर पर देखा जाता है इंडिया का। जहां तक चाइना के साथ हमारी बॉर्डरिंग रीजन का सवाल है, वहां से इन बच्चियों की आपने आवाज़ें सुनी, यंग स्टूडेंट्स की, यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आइए अब यहाँ की तस्वीरें भी आप लोगों तक हम पहुँचा। उनको रिहा करें जल्द से जल्द, क्योंकि प्रोटेस्ट करना कोई भी गुनाह नहीं है, अपने हक की आवाज़ उठाना कोई भी गुनाह नहीं है। और ये जो सरकार हम सब देख रहे हैं, ये सब लद्दाख की बात नहीं है साथियों, ये लद्दाख के अलावा भी हर जगह पे, चाहे आप मणिपुर में देख लीजिए महीनों, और अभी भी मणिपुर जो है जला है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका मणिपुर जाने का एकदम उनको देखने का समय नहीं मिलता है। उनको समय मिलता है कि देश दुनिया हर जगह घूम ले, और इनकी जो नीतियां हैं साथियों, वो लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार जो दलित विरोधी रही है, मुस्लिम विरोधी रही है, और हर स्टेट में जहाँ भी कोई भी, चाहे वो महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो,
कोई भी अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है तो उस किस तरीके से ये लोग लगातार उनको जेल में भरने का काम करते हैं, जो कि एक डिसेंट रखने को ही गुनाह समझते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। ऐसी सारी जो मंसूबे हैं, ऐसे सारे कारनामों को हम यहाँ से रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं। लद्दाख से 2 पार्लियामेंट्री सीट हो, एक लेह डिस्ट्रिक्ट से और एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट से, इसका सपोर्ट करते हुए और साथ ही साथ जो चौथी डिमांड है यहाँ पे रिजर्वेशन और लोकल जॉब क्रिएट हो, लोकल जॉब कमीशन क्रिएट हो, उसकी सपोर्ट में आए हैं। लद्दाख के कुछ और यूथ हमारे साथ हैं। सेफ लद्दाख स्टेटहुड की एक बैनर लेकर भी यहाँ पर आए हुए हैं कुछ युवा। व्हाट्स योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम? My name is Tanzin. I am from Ladakh. Currently, I am doing my undergraduate program in BA program. तंजीन, इस वक्त लेह में क्या हालत है? आपके परिवार वालों से बात हो रही है? अभी लेह में अभी देखा जाए तो अभी कर्फ्यू लगा था कुछ दिन पहले। अभी तो घर में फ़ोन हुआ कि बोल रहा था अभी सिचुएशन कुछ सही है। इंटरनेट का भी अभी थोड़ा चल रहा है। दुकान बाजार खुले हैं? हाँ, दुकान सब इस ओपन नाउ। जब ये वायलेंस की खबर आ रही थी तब आपके घर वालों से बात हो पा रही थी उस दिन आपकी? हाँ जी, हाँ जी। वो सिर्फ इंटरनेट स्लो था, बाकी जो फ़ोन कॉल थे वो ओपन थे। हाँ जी। अभी वहाँ पे ग्राउंड सेंटिमेंट क्या है? क्योंकि सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, उन पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। क्या लोगों को लग रहा है कि सेंटर सेंसिटिव है उनके डिमांड्स को लेकर? तो अभी जो वायलेंस हुआ था क्रैश, तो लोगों के अंदर बहुत ही दुख हुआ था कि क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इस क्या बोलते हैं इस प्रोटेस्ट में 4 लोगों की क्या बोलते हैं शूटिंग से की। हाँ जी। तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लद्दाख के वहाँ पर जो लोग थे वो अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे और बीच में जो CRPF थे और पुलिस थे उन्होंने पता नहीं कहाँ से गोली चला दी। तो गोली चलाने के अलावा और भी बहुत कुछ क्या बोलते हैं और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। बेटान चार्ज कर सकते थे, वाटर कैनन यूज़ करते थे, स्मोक ग्रेनेड यूज़ कर सकते थे और टीयर गैस यूज़ कर सकते थे। वायलेंस क्यों हुआ, आपको क्यों लगता है? वायलेंस इसलिए हुआ था क्योंकि जो हम पहले लद्दाखी जो 4-5 सालों से अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट हमारी बात सुनेंगे। हमने पेशेंस रखा था 6 साल 5 साल तक। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ना युवाओं के लिए कुछ किया, युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्रिएट नहीं किया और लद्दाख को जो सेफ गार्ड थे, हम वहाँ पर रहते हैं, हमने वहाँ पर एनवायरनमेंट को चेंजेस होते हुए देखा है और लद्दाख के लोगों के अंदर एक वो दुख पैदा हुआ कि हमारे लद्दाख में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने गवर्नमेंट से ये मांग की है कि और गवर्नमेंट खुद ने ये क्या बोलते हैं वादा किया कि लद्दाख को प्रोटेक्शन देंगे। किस तरह के एनवायरनमेंट चेंजेस देखे हैं आपने? हमने देखे हैं कि वहाँ पर इरेगुलर वेदर पैटर्न हो रहा है, वहाँ पर स्नो जल्दी मेल्ट हो रहा है और इस साल तो बहुत बारिश हुआ था और जो एक वेदर चेंजेस का एक हमारा क्या बोलते हैं एक निशान है। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि लद्दाख में सिचुएशन आने वाले दिनों में इम्प्रूव होगा, आप लोगों की बात मानी जाएगी? क्या आप चाहेंगे कि वापस वहीं जाके जॉब कर सके, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले? अभी कुछ कह नहीं सकते। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन दे ताकि लद्दाख के इन्वायरमेंट और लद्दाख के लोगों के बीच में बहाल और लद्दाख का इन्वायरमेंट सेफ रहे और देश विदेश से आए लोगों को वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं टूरिज़्म के लिए उन्हें स्वागत कर सके। हाँ जी। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? I am from Ladakh. Ladakh. What is this flag? This flag represents anime from Japan, like which is famous in the world right now. The flag represents the war against the Central. Like it's a part of a pirate in the sea. Like they revolt against the navy. You are revolting against the government not giving you your rights? Yes, I am also representing myself as an indigenous people, indigenous tribal of Ladakh. I want to represent my people from Ladakh and I want to say their demands are valid. What is the challenge that you face today as a young person in Ladakh? Is it environment? Is it jobs? Is it not being heard, not being represented? I would say like the current government, BJP government is lying to us, like lying in the head of us, and they are trying to suppress us by killing our innocent people from Ladakh. Like they literally killed four people. Like 3 of them were literally studying in the universities in Ladakh, and one of the person was from a retired personnel from Venetran.
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे जो युवा हैं जो DU JNU वगैरह में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों का कहना है कि लद्दाख में नौकरियों के विकल्प नहीं है। वैसे बेरोजगारी आज सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम चाहे जितने भी फैंसी वाले फिगर्स दिखा दें हमारे GDP नंबर्स को लेकर, लेकिन शाइनिंग इंडिया के पीछे दिन ब दिन जो युवाओं की पीड़ा है, जो युवाओं का कष्ट है, वो बढ़ता जा रहा है और उसे इग्नोर सरकार अपने पेरिल पर, अपने रिस्क पर कर रही है। बहरहाल यहाँ इस मंच में सजाद करगिली, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, वो भी जुड़े और उन्होंने भी अपनी बातें रखी। आपको हम वो बातें भी सुनाते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरी यूट्यूब स्टेशन बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। जहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ दिन दहाड़े जो है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे गोलियां बरसाई जा रही हैं और ख़ासकर लद्दाख जैसे एक हसास और सेंसिटिव जगह को जिस तरीके से एक कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट, हालांकि कश्मीर में भी जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो गलत हो रहा था, लेकिन अब लद्दाख के साथ भी कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट, मणिपुर जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कंडेमनेबल है, किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लद्दाख जिससे आप सभी लोग परिचित हैं कि एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हसास जगह है जो दो बड़े बॉर्डर्स को जोड़ता है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। 1948 से लेकर के आज तक जब भी देश पे संकट आया है, लद्दाख ने हमेशा खुले मन से अपना खून देकर इन सरहदों की हिफाजत की है। आज 70 साल बाद, 75 साल बाद जब हमको लगता है कि हमसे हमारे ज़मीनों के अधिकार छीने जा रहे हैं, हमसे डेमोक्रेसी छीनी जा रही है, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, हमारे नौजवान लड़कियों से नौकरी का हक छीना जा रहा है, उस समय में लद्दाख के लोग एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। जिस डेमोक्रेसी की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया भर में जाकर के करते हैं और कहते हैं कि हमारे DNA के अंदर लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकली लद्दाख में इम्प्लीमेंट होते हुए देखें। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह 370 और 35A के अंदर जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, हमारे ज़मीनें महफूज थी, हमारा फ्रेजाइल इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट है, हमारे ग्लेशियर्स महफूज थे, आज वो सब खतरे के दहाने पर है। बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते वक्त, यानी उससे पहले 2019 के चुनाव के दौरान ये लद्दाख के लोगों से कहा था हम 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को देंगे। लद्दाख के लोग कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे हैं, उनको उनका वादा याद दिला रहे हैं। जिस तरह उन्होंने 15 लाख रुपये का वादा सबसे किया था, वैसा ही एक वादा लद्दाख के लोगों के साथ भी किया गया। और हमने मैनिफेस्टो में भी लिखा, न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार ये कहा गया कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के दायरे में लाया जाएगा। और उसके बाद उस वक़्त के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने लद्दाख में आकर के कहा कि आपको 6ठा शेड्यूल हम देंगे, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंड किया। लेकिन आज जो भी 6 शेड्यूल की बात करता है, उन्हें आपने देखा उनके साथ क्या हाल हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन न होने की वजह से पिछले 6 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं दी है। और छोटी सी आबादी में जो आप रेशो देखेंगे, 26% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका बढ़ता हुआ रेट है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर सेंस ऑफ बिट्रेयल है, और एक किस्म का ट्रस्ट डिफिसिट लद्दाख में देखा जा रहा है। हम पूरे देश के लोगों से, यहाँ के जवानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, मर्दों से, सबसे, हर किसी से, हर वर्ग के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि देखिए, लद्दाख कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है सरकार की हुकूमत करने वालों से के लिए। उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते। हमारा इतना पावर नहीं है कि हम मुल्क में जो मौजूद हुकूमत है उसके लिए कोई ख़तरा बने हैं। हम कोई ख़तरा नहीं है। जिस तरह का टाइटल दिया जा रहा है, यानी साउथ एशिया में अब कोई मुल्क नहीं बचा जिसके साथ अब लद्दाख को लेबल न किया जा रहा हो। चाइना से लेकर, नेपाल से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, यानी कोई मुल्क नहीं बचा है साउथ एशियन कंट्रीज़ में जिसके साथ लद्दाख के लोगों को लेबल नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा शर्मनाक बात है। ये कि अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए। फायरिंग किसने की? बंदूक की नोक पे जिसने प्रोटेस्टर्स, मैं नहीं कहता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी कहते हैं लद्दाख के कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, और उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने कारगिल में जंग लड़ी, पाकिस्तान की गोलियां जिन्हें मार न सकी, उन्हें अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को गोली मारने का ऑर्डर किसने दिया? क्या इतना भी हक नहीं है इस लोकतंत्र में हम ये पूछें कि इनको दिन दहाड़े गोली क्यों मारी गई? इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार के साथ अकाउंटेबिलिटी हो, इसीलिए हम कहते हैं कि लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, क्योंकि यहाँ गोली मारने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है और गोली मारने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अंदाज़ा कर सकते हैं जो छोटी छोटी पॉलिसीज़ हो रही हैं, जो करप्शन हो रहा है, उसके ऊपर कौन सी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो साथियों, मैं जिन लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया, इसको मैं उन तमाम लोगों का लद्दाख की पूरी जनता की तरफ से, सबकी तरफ से इनको शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि ये लड़ाई जो लद्दाख लड़ रहा है, ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। सबको एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये आपके ज़मीनों और आपके ग्लेशियर्स की लड़ाई है। अगर लद्दाख इफेक्ट होगा तो ये मान के चलिए आधा हिंदुस्तान इफेक्ट होगा। आपने अभी हिमाचल के अंदर देखा, आपने उत्तराखंड के अंदर तबाही देखी, आपने जोशीमठ में देखा, आप लोगों ने पंजाब और जम्मू के अंदर देखा जो तबाही हुई। खुदा न खास्ता अगर यही तबाही लद्दाख में हुई, जहाँ का एक बहुत सेंसिटिव फ्रिजाइल इकोलॉजी है, तो इसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ लद्दाख को बचाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड करना ज़रूरी है। लद्दाख में डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है कि जहां हमारी सेना एक तरफ नेशनल डिफेंस का काम करती है, तो लद्दाख के लोग नेचुरल डिफेंस है। यहाँ का ग्लेशियर देश का नेचुरल डिफेंस है। यहाँ के लोग वर्दी नहीं पहनते, तनख्वाहें नहीं खाते, ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद देश की सेना से कम काम नहीं करते हैं। जब जब देश पे आफत आती है, लद्दाख के लोग सबसे पहले सीना तान के देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज लद्दाख खोया तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भूल होगी। लद्दाख के लोगों का ट्रस्ट डिफिसिट बहुत तेज़ी से हो रहा है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, और हमें भी मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है, इस लोकतंत्र का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। और लद्दाख के जंगल तो वहाँ बहुत कम है, लेकिन जो हमारे ग्लेशियर्स, जो हमारे पहाड़, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की ज़रूरत है। और जो यूथ है उनके अंदर सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन न बढ़े, उनको उनकी मुनासिब जॉब, नौकरी मिलने का हक उनका हक है। और इतने बड़े रीजन को ये हमें कहते हैं कि आप 2 पार्लियामेंट्री सीट क्यों मांग रहे हैं, आप तो 3 लाख की आबादी है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जो लद्दाख है वो करंट हमारा जम्मू कश्मीर से 3 गुना बड़ा रीजन है, हमारे देश के बहुत सारे स्टेट से बहुत बड़ा है रुकबे के हिसाब से, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ एक MP को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 दिन और 1 रात का वक्त लगता है। तो ऐसे में लद्दाख डिजर्व करता है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े लोकतंत्र से अपने लोगों को जोड़ने के लिए मुनासिब रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और दोनों रीजन्स को मुनासिब रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप तमाम लोगों का हमारे इस 4 पॉइंट डिमांड को सपोर्ट करने पर, लद्दाख की आवाज़ बनने पर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों भी सज्जाद कारगिल लद्दाख से भी बात रखेंगे।